thank you so much for taking out your time to talk to PTI. Yesterday, Union Budget got presented. A lot of focus was there on the orange economy. Correct. I think for the first time they have categorically mentioned about the orange economy. Right. So how do you see this budget? How do you rate this budget? I think there was a good mention about increase in budget for developing creative talent within the country, and that's a great move. Um, I think what's going to be difficult is the implementation of this. I think as a country, we already have plenty creative talent. The goal for this should be how do we increase the pie? What is the pipeline from educating the individual to actually getting them a job? That's going to get important within the ecosystem of a country. And if we fix that, I think we will be able to increase the salaries of creative talent and we will be able to give them a growth progression in their careers as well. But overall, I think I'm happy with the announcement of the allocation of budget for improving creative talent within the country. Okay, which type of content will be benefited from this budget, or which type of content creators will benefit from this? So I think it's not just a content creator specific allocation. This allocation, as it says ABGC, right? So it's animation, there's VFX, there is gaming and comics. So it spans across various industries. This is going to be also hard focused on improving technical talent. VFX and animation are not easy skills to pick up. So I think those industries will definitely see an improvement in the kind of talent that we have. There are only a few schools within the nation that do that. So standardizing this and the government supporting this initiative will really help. So I think genres around gaming, comedy, animation, VFX, AI is what will see an uptick of talent. Okay, and coming to the design or the branding part of Yeah. coming to the design coming to the branding or design part of it, or the inclusion part of it, do you think that the budget literally really address this issue? I think so. I mean, if you look at just the new reform for the orange economy, I think there were 250 crores allocated for implementing the programs within about 1,000 plus schools and colleges. It looks like it's not as high of a budget, but I think it's a good start, is what I would say. And if we're able to develop better talent and further create relevant jobs for that talent, I think it's a welcome move. Since a lot of focus was put on the formal side of Yeah, orange economy, there is a informal side of it also. So correct. do you think that the more things could have been done on that front? Yes and no. See, I think the informal side is where people are self-educating themselves. So the kind of people that we're surrounded with right now don't have any formal education. If you look at the editors we have in our team, they are all self-taught. They didn't go to any specific university. But that is also because, many of them either come from privilege or are in urban households where access to these devices and internet is much easier. The kind of people you're surrounded with also want to upgrade themselves. So it's much easier, but I think this move will bring in education that's required within the creative fields across the country and open us up to more talent. Right now, if you look at it, more and more creators are coming up, and as there will be more creators, there will be a need for more editors, more videographers, more VFX artists, and that makes it really important that it self-sustains the economy in a way. But I think, again, it's more important if we also focus on how many more jobs can be created. So if that means companies like ourselves, platforms that exist, media organizations that exist within the country, if they were able to understand how to create more jobs, how to employ more people, that's how we'll be extending the pie instead of getting more people to compete for the same job in the job market, which would make things very difficult for everybody. So in a nutshell, if you have to tell the biggest takeaways from the budget or Yeah. the suggestions for the budget, Yeah. so what would it be? I think from a purely content creation point of view and from the industry point of view, some of these moves are very, very welcome. I'm glad that the government understands that the creator economy is not just
consuming things. It's also now legitimized enough to create jobs, and this is where the government also feels that the next phase of job creation is going to come in. So I think it's a welcome move from that front. I'm quite happy. And coming to the cost of the equipment, say for the Yeah. internet or the studio equipments, and the cost of Yeah. emerging technologies like AI. Yeah. So, do you think that the government should take initiative to address these issues? Because the cost is very Yeah. high. Of the shooting equipment. Shooting equipment. Yeah, I think there are more and more Indian companies also that are entering this area to improve costs and to make it sustainable for everybody. At this point, usually, if you have a decent phone, I think you are also able to shoot content from those devices itself. If you look at a tripod or you look at other technical equipment, you need to make content and get started. The base level of it is not that expensive, but as you improve and upgrade that equipment, it's definitely far more expensive. But I mean, that's really in the hands of the companies that manufacture it more than the government only. Okay. And how optimistic are you about the contribution of foreign economy to the GDP of the country? I'm really optimistic about it. I think YouTube had put out a data a year or two ago where they stated the thousands of crores of revenue that they've added to the GDP, and the number of people that have directly benefited from it. Because it's not just the YouTubers. The big YouTubers have big teams. Today, if you have to run a podcast of your own, you need a thumbnail editor, you need a podcast producer, you need an outreach manager, you need a PR manager, you need a videographer, you need an editor. You need a lot of people in your team to make that whole thing come through. And I think the more people consume content, the more we will have job creation opportunities, because there will be more players who will want to supply the need of that content as well. So I think net it's all positive. From a content and media industry perspective, I'm fairly happy. Okay. And apart from budget, one question from my side. Do Yeah. you think that the content creators in India just redefine the celebrity status in the country? Oh, completely. I mean, the fact that you are here in our office taking my take on this is simply because we don't really manage celebrities. We manage digital creators, and I personally have been the biggest champion of the fact that creators are going to be the next big public figures, and they are the real people who can bring in active change and influence within the nation and the economy as well. So many people across creators and this industry are now employing people, creating jobs, and not just doing jobs themselves, right? So it's all adding to the economy and to the GDP for the country. Okay. And is your company is planning to get into this filmmaking or showreel business? So I mean, we work with Bollywood on and off. Although my personal belief is to continue doing what we believe in best, and I think we understand our ecosystem way better, which is the creator ecosystem, the content ecosystem. So I'd rather be the king in that than try to be like somebody in a different industry. Also, I just feel like the way movies are going, content in itself has democratized completely. Today, you don't need to be entertained only by a specific director or producer who is going to produce 100 crore movie for the big screen. Today, you're entertained by someone who's creating an exciting YouTube video or someone who's consistently producing reels that are entertaining you as well. So I think that's where the future is. Okay. It has been our pleasure talking with you. Thank you so much for Thank you so much. सर सबसे पहले तो पीटीआई से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल देखा गया कि वित्त मंत्री ने बजट पेश किया संसद में। काफी बहुत सालों के बाद ऑरेंज इकोनॉमी की बात हुई, काफी अनाउंसमेंट्स हुए जिनसे क्रिएटिविटी लेड सेक्टर जो है या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग हैं वो उनको काफी हेल्पफुल होगा। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कितना आप रेट करते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया मूव है। आई थिंक 250 करोड़ की कुछ एलोकेशन की बात की गई है बजट में अराउंड डेवलपिंग थिंग्स लाइक एवीजीसी विच इज एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमेडी वगैरह में उनका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो
ये जो इंडस्ट्री थी हमारी वो बहुत ही इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री थी, और ये बजट एलोकेशन के बाद आप बोल सकते हो कि ये और इनको फॉर्मलाइज किया जा रहा है, और ये बहुत ही वेलकम मूव है मेरे हिसाब से। ऑरेंज इकोनॉमी के कौन कौन से सब सेक्टर्स या सेक्टर्स हैं या किस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स से इनको फायदा मिलेगा इस प्रोजेक्ट से? आई थिंक सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ही नहीं, वाइडर इंडस्ट्री है, एडिटर्स की इंडस्ट्री है, एनिमेशन वीएफएक्स की इंडस्ट्री है, उनको भी काफी फायदा होगा। मूवी स्टूडियोज को काफी फायदा होगा, क्योंकि वो भी ये टाइप के टैलेंट बहुत हायर करते हैं। तो टैलेंट तो हमारे देश में पहले से ही था काफी, इससे और टैलेंट इम्प्रूव होगा, टैलेंट की डेंसिटी भी बढ़ेगी, और लोग ये स्किल सेट्स पाएंगे। मेरी इसमें एक ही राय है कि इसमें जॉब क्रिएशन भी उतनी ही तेजी से होनी चाहिए जितनी स्किल डेवलपमेंट होगी, वरना जितने लोग टैलेंटेड थे और टैलेंटेड लोग आ जाएंगे, लेकिन जॉब्स उतने ही रहेंगे। उस वजह से हम सेम चीज के लिए compete करते रह जाएंगे, और हम जो सीलिंग है, जो ग्रोथ की सीलिंग है, वो हम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि अगर जितना ज्यादा हम जॉब क्रिएशन करें इसके साथ, उतना बेहतर होगा। एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट हुई जिसमें आईआईसीटीसी सिटी को बोला गया कि वो लैब्स एबीसीजी एबीजीसी लैब्स करे, जिससे लोगों को एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले, तो उसको आप किस तरीके से देखते अगेन वेलकम मूव है, ये तो बहुत ही अच्छी मूव है। जितने और लोग डिजाइनिंग ब्रांडिंग में भी बढ़िया कर सकते हैं काम, मेरे हिसाब से आने के टाइम में और से ज्यादा कंज्यूमर कंपनीज बिल्ड होने वाली है। आप देख ही रहे हो लास्ट 5 साल में कितनी कंज्यूमर कंपनीज इंडिया से बाहर आई है, और उसमें से काफी कंपनीज 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ के वैल्यूएशन तक भी जा चुकी है। इसका ये मतलब है कि ये कंपनीज कॉन्स्टेंटली नए लोगों को हायर करना चाहती है, और जितना बेटर टैलेंट पूल होगा हमारा, और हमारा देश सबसे पॉपुलस देश है, करोड़ों लोग रहते हैं हमारे देश में, 1.3 1.4 बिलियन प्लस पीपल ऑलमोस्ट। तो जितनी ज्यादा कंज्यूमर ब्रांड्स आएंगी, उतना ज्यादा उनको जॉब हायरिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और जितने ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे हमारे पास, उतनी ज्यादा वो हम रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाएंगे। हैं? जहाँ तक बात की जाए ऑरेंज इकोनॉमी की, तो इसके भी दो पार्ट हैं, एक फॉर्मल उसका पार्ट है, एक इनफॉर्मल है, जिसमें काफी मेजर चंक है पॉपुलेशन का। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि बजट में उनको थोड़ा सा एड्रेस नहीं किया गया, फॉर्मल साइड को ज्यादा? जी जी, आप बोल सकते हैं ये, लेकिन अब क्या है, हमारे आसपास भी एक्चुअली आप देखोगे तो बहुत ही इनफॉर्मली ट्रेन्ड लोग रहे, लेकिन ये लोग एक सर्टन टाइप ऑफ फैमिली से भी आते हैं जहाँ पे ये एजुकेशन इजीली एक्सेसिबल है। लोग यूट्यूब वगैरह एक्सेस कर पा रहे हैं, उनके पास स्मार्टफोन्स है, तो इजी हो जाता है। ये फॉर्मलाइज करना इम्पोर्टेंट था, ये स्पेस को, ताकि अब मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर के बाहर भी जो शहर है, वहां पे भी हम कैसे इन बच्चों को एजुकेट और अपस्किल कर सके विद इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इतनी ही चीज में ही खुशी लेना चाहूंगा कि एटलीस्ट फॉर्मल साइड ऑफ द इंडस्ट्री को अपस्किल करने के लिए एक बजट एलोकेशन किया गया है, तो वो बहुत ही अच्छी न्यूज है। एलोकेशन काफी अच्छा किया गया है इस या बजट में। आपको लगता है कि आने वाले बजट में कुछ स्कीम हो जो स्किल्स को कर सके, या बेसिकली ऑरेंज इकोनॉमी के लिए कोई स्कीम्स होनी चाहिए जैसे बाकी सेक्टर्स के लिए होती है? आई थिंक हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए देखने के लिए कि ये कैसे पैन आउट होता है, कि ये स्कीम इम्प्लीमेंट भी कैसे होती है, क्योंकि मेरी राय ये है कि सबसे डिफिकल्ट और टफ पार्ट इसका ये होगा कि ये इम्प्लीमेंट कैसे की जाने वाली है, ये स्कीम इतने लार्ज स्केल पे, क्योंकि इतने ज्यादा क्रिएटिव लोग हैं जिनको अपस्किल करना भी पड़ेगा ये स्कीम से। बट उसमें यही बोलना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा हम कंपनीज में ये प्रमोट करेंगे कि ये टाइप की टैलेंट हम इन हाउस और हमारे देश से हायर करें, उतना उतना बेटर होगा। उतना हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे, उतना ही हम ज्यादा सैलरीज और अपलिफ्टमेंट ला पाएंगे अक्रॉस वेरियस इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। जहाँ तक बात की जाए सेटअप कॉस्ट की, तो हाँ जैसे स्टूडियो इक्विपमेंट्स है या जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई है, तो उनका कॉस्ट काफी होता है। जी। तो आपको लगता है कि बजट में इसको भी देखना चाहिएगा? हाँ,
आप बोल सकते हो, लेकिन ये मेरे हिसाब से काफी मैन्युफैक्चरर के हाथों में अभी मुझे पता नहीं है जीएसटी क्या लागू होता है ये इक्विपमेंट पे। बट इंडिया में काफी मैन्युफैक्चरर आ गए हैं ये इक्विपमेंट्स के लिए, जो बेस लेवल पे अच्छी कॉस्ट पे मेरे हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहे। अगर आपको ट्राईपॉड खरीदना हो, अगर आपको लाइट्स खरीदनी हो, उतनी एक्सपेंसिव अब नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा एक कॉस्ट लगता है, एक इन्वेस्टमेंट है इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ क्रिएटर। लेकिन आज के टाइम में आप अपने सेल फोन से भी वीडियो बना के डाल सकते हो। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो 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 गांव में रहते हैं और जो विलेजेस और फार अवे टाउन्स में रहते हैं, वो भी कंटेंट शुरू कर चुके हैं, सिंपली क्योंकि उनके पास एक स्मार्टफोन है जिसमें एक अच्छा सा कैमरा है। ऑरेंज इकोनॉमी का जो अभी हाल है, आपको क्या लगता है इसकी ग्रोथ कितनी होगी आने वाले कुछ सालों में? आई थिंक ग्रोथ तो और ही होने वाली है, क्योंकि हम सब अपने फोन पे डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं पूरा दिन, हम 10-10 घंटा रील देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। तो ये इकोनॉमी तो ग्रो ही होने वाली है मेरे हिसाब से। आप अगर देखोगे तो बॉलीवुड की मूवीज लोग कम देखना अब पसंद करते हैं। सिनेमा हॉल्स में अब लोग कम जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स की जो भी ब्रांड्स थी वो अपने आप में मर्ज कर रही है, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पा रही अपनी बिजनेसेस। और दूसरी साइड पे आप देखने जाओगे तो प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब, मेटा वगैरह, उनकी दिन भर दिन शेयर प्राइस भी बढ़ती जा रही है और उनका ग्रोथ भी होते जा रहा है। जितना एआई हमारे जिंदगी में और आते रहेगा और जितना कंटेंट हम और कंज्यूम करते रहेंगे, मेरे हिसाब से ऑरेंज इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है। ये बहुत ही बढ़िया मूव होगा, क्योंकि जितना कंजम्पशन ज्यादा होगा उतना डिमांड भी ज्यादा होगा, और उस हिसाब से हम जो सप्लाई दे रहे हैं ऑफ टेक्निकल टैलेंट, क्रिएटिव टैलेंट, वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगी अपने आप में ही वो इंडस्ट्री। तो मेरा होप यही है कि लोग और अपने फोन पे एंटरटेनमेंट की खोज करते रहे, कॉमेडी वीडियोस देखते रहे, पॉडकास्ट देखते रहे, रेसिपी वीडियोस देखते रहे। इससे और दिन भर दिन टैलेंट की नीड होगी ही होगी। अच्छा, बजट के अलावा अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि जो भारत में कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं, उन्होंने जो सेलिब्रिटी का एक डेफिनेशन होता था, हाँ, जो परिभाषा होती थी, उसको बदला है? बिल्कुल बिल्कुल। आप आज के दिन में देखोगे, आप एक एवरेज मूवी स्टार को ले लो और आप एक कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर को ले लो, आप उनको रास्ते पे एक वॉक के लिए भेज दो, मेरे हिसाब से तो यूट्यूबर को ज्यादा लोग पहचानेंगे और ज्यादा ऑटोग्राफ के लिए मांगेंगे। और सिर्फ यही नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स हैं जो इतना बेहतरीन कंटेंट दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। आप देखोगे फाइनेंस पे इतनी रील्स बन रही है। आप छोटी छोटी चीजें, जैसे गार्डनिंग आपको कैसी करनी है, आपको इंटीरियर डिजाइन कैसी करनी है, ये तक चीजों पे आजकल जो एक्सपर्ट्स है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो हम बोलते हैं, वो रोज दिन भर दिन वीडियो बना रहे हैं, जिससे लोगों की एजुकेशन और अपस्किलिंग अपने आप ही हो रही है। हाँ, एक साइड पे एंटरटेनमेंट वीडियोस भी है जो कॉन्स्टेंटली हम देखे जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरा साइड है जो एजुकेशन वाला साइड है, जिसपे हम कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। हाँ, जहाँ तक बात आपकी कंपनी की जाए तो क्या आपका कोई इरादा है फिल्म मेकिंग या शोबिज में आने का? हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम करते ही है सेलिब्रिटीज वगैरह के साथ। हम फोकस हमारे ही डोमेन में करना चाहेंगे। हमारा डोमेन है कंटेंट क्रिएशन का, क्रिएटर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का। हम वही चीज पे फोकस करना चाहेंगे। अच्छा, आपने बात सेलिब्रिटीज की तो आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज को अगर कुछ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लॉ एंड ऑर्डर का काफी इशू चल रहा है, फायरिंग वगैरह का, तो इससे ब्रांड इमेज को फर्क पड़ता है कंपनी की अगर सेलिब्रिटी उनसे एसोसिएट है? हाँ, लेकिन एटलीस्ट जैसे हम, हमारा सेटअप है, हम उतने डिपेंडेंट नहीं है सेलिब्रिटीज से। हमने कंपनी का भी एक अपना एक ब्रांड वैल्यू और प्रोपोजिशन बना के रखा है। हम 8-9 साल से इस इंडस्ट्री में है, और डे वन से हमारा थॉट यही था कि हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि ट्रस्ट ऑलवेज कंपाउंड्स एवरीथिंग एल्स कैन बी फिगर्ड आउट लेटर। तो ट्रस्ट जो है, वो ट्रस्ट और रेप्यूटेशन, दो ही चीज है एटलीस्ट मीडिया इंडस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कोई भी बिजनेस या कारोबार आप चला रहे हो, उसमें ट्रस्ट इज द नंबर वन करेंसी दैट इज रिक्वायर्ड। तो वी हैव पोजिशनड आवरसेल्व्स वैसे कि हमें इतना प्रॉब्लम ना हो। सब पीटीआई से बात करने के लिए बहुत थैंक यू सो मच।